constantly be always in our hearts. We are very grateful to our for standing by us in our difficult times. Thanks. So I will be addressing you all in this fashion. I have lot of memories from this school which will remain forever in my heart. I hope you will also remember that memories. This beautiful school will always be an important part and parcels of our lives. Our school gave us precious memories that are truly priceless. The day when I first walked into the school premises is still fresh and new in my mind. The teachers at this school are extremely kind and supportive who have always showed their selfless love, care and attention of each one of us. Now when I am grown up, I imagine how difficult would it have been for our teachers to teach us to adapt when we are small children. Sir, I am very sure that the lessons of life we have learned from you would help us to climb. मैं कुछ लाइन बोलना चाहती हूँ। विदाई का यह दिन है, माहौल थोड़ा गंभीर, लेकिन दुआ है रब से आप यूं ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सबके दिल में बसते रहो। हैप्पी फेयरवेल। Respectful principal sir, teacher staff and all dear juniors and my sweet classmates. As you know, today we all are gathered here to celebrate a heartbreaking farewell. So I didn't even prepare any speech for this. I didn't even jot it down to Google, just trying to express my own feeling thoroughly with all of you. Today I'm trying to express the 7 years old journey with all of you. So now I'm going to speak in Hindi a little bit. So जब शुरू में मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था, it was like out of imagination that I will be doing my best and doing this kind of activities in my school, like singing, dancing and all those things which today I am able to do. I didn't even imagine that I will be able to do all these things. And I'm so thankful, so grateful to my parents and my teachers. और English बोलना was like out of imagination for me. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने अच्छे से कभी इंग्लिश में किसी से बात कर पाऊंगी, किसी से इतनी अच्छी कन्वर्सेशन मेरी हो पाएगी इंग्लिश में, मैंने कभी नहीं सोचा था. So this became possible because of all the teacher staff. They every time they supported me and there was never like that you are the dumbest student, you cannot do this, you cannot do that. They always supported me and encouraged me towards learning and everything. और it was like a life-changing moment when I entered this school. When my admission, when I got admission in this school, that was the like most auspicious moment for me ever. अगर एलम सर हमारी सिली मिस्टेक्स पे हमें माफ करते हैं, एलम सर हमारी छोटी छोटी गलतियों पे अगर हमें माफ करते हैं, इवन बड़ी गलतियों पे भी हमें माफ करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें बिगाड़ना चाहते हैं या फिर वो ऐसा चाहते हैं कि हम किसी गलत पाथ पे चले या फिर कुछ गलत करें. एक बात एलम सर ने हमसे कही थी, मुझे याद है परसों हाल ही में, कि अगर मैं तुम्हारी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स पे अगर मैं तुम्हें माफ करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी कोई केयर नहीं करता. लाइक आई डोंट केयर व्हाट यू डू, इट्स योर लाइफ, लिव एज यू वांट, आई डोंट केयर. नहीं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे ज्यादा है कि हम इन छोटी मिस्टेक्स को लाइक इग्नोर करें, नेग्लेक्ट करें. उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे ज्यादा है कि हम ज्यादा अच्छा करेंगे, इसीलिए वो हमारी सिली मिस्टेक्स को माफ करते हैं. तो हम क्या करें? वो कभी नहीं ऐसा नहीं कि तुम्हारी लाइफ है तुम कुछ भी करो, मुझे उससे क्या है, मुझे इन्वॉल्व मत करो इन सब चीजों में. तुम्हारी लाइफ है, तुम जो करना है तुम करो, आई डोंट केयर. कभी नहीं.
वो खुद उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते थे और खुद हमें उसका सॉल्यूशन बता देते, क्योंकि एडम सर ने ऐसा हमारे साथ इन्वायरमेंट क्रिएट किया है कि हम उनको सारी बातें जाके शेयर कर पाए। ही इज द मोस्ट ऑस्पिशियस पर्सन फॉर मी एंड द होल स्कूल। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस स्कूल में आऊंगी और ऐसे पर्सन मेरे टीचर बनेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। सो इट इज लाइक मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, एलम सर के लिए, क्योंकि मैं जितनी तारीफ करूँ एलम सर की वो कम है, इसीलिए मैं तारीफ नहीं करूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। और लास्ट में एक शायरी के साथ मैं स्पीच अपनी एंड करना चाहूंगी। जो भी लोग अगर कोई बुरा फेस से अगर कोई जूझ रहा है या फिर किसी को टेस्ट है कोई, तो उसके लिए या फिर हम सब के लिए, हमारे बोर्ड एग्जाम्स है तो हमारे लिए ये शायरी है। हिम्मत कर सब्र कर बिखर के भी निखर जाएगा, हिम्मत कर सब्र कर बिखर कर भी निखर जाएगा, शुक्र कर यकीन कर वक्त ही है गुजर जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और आप हमारे दोस्त में एक बहन जैसे हो। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ इस लाइन में। हमें छोड़कर जहाँ भी जाओगे यकीन है खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। तो भरकर दिल की बात ना हो पाई, मस्तानों की मुलाकात ना हो पाई। हमें छोड़कर जहाँ भी जाओगे यकीन है खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। जी भरकर दिल की बात ना हो पाई, मस्तानों की मुलाकात ना हो पाई। थैंक यू। Welcome to everyone. Respected principal sir, teachers, and all my dear fellow friends and students. Thank you for giving me this to start this event. And I feel lucky to be standing here, sharing what we have been learned and what we feel on the behalf of this school. Sir, thank you for the activities. You have always believed in practice, learning and Good morning all of you. So today we are here for celebrating our farewell at last day of our school. तो मैंने भी लास्ट में कुछ स्पीच तो सोची नहीं थी, मैं गूगल से लिखी थी। सोच भी रहा था गूगल से लिखने का, पर लगा नहीं कि ये वर्ड मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे। जो इतने साल, शायद 9-10 साल स्कूल में पुराने टीचर्स के साथ कुछ लास्ट लम्हे थे, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ और एलम सर के साथ मैं मतलब कुछ क्या करें वो हो रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इतनी बहुत सारी यादें, बोलना मुश्किल हो रहा है, इतनी यादें कि क्या जो बोले, इतनी यादें कि मेरे दोस्तों के साथ, एलम सर के साथ है लास्ट 10 सालों से। आज है तो कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। हम आज है तो कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। मेरी शरारतों से नाराज मत होना मेरे दोस्त, ये वो लम्हे हैं जो कल बहुत याद आएगा। बाकी 1-2 शायरी मेरे दोस्तों के लिए है, मेरे स्पेशल दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, कुछ ठीक ठाक, कुछ ठरकी जिनके साथ कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी दूसरों का लंच चुराते हैं, उनके लिए है। जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती। जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती। मिलना हमारी तकदीर में था, वरना इतनी प्यारी दोस्ती इत्तेफाक नहीं होती। और एक हमारे इंस्पिरेशन, हमारे फेवरेट टीचर मिस्टर एलम सर के लिए, किसी को दिल का नजराना पसंद है, किसी को दिल का मुस्कुराना पसंद है। किसी को दिल का नजराना पसंद है, किसी को दिल का दीवाना पसंद है। औरों की पसंद का तो पता नहीं, हमें तो एलम सर आपका मुस्कुराना पसंद है। और
एक शायरी मेरे दो स्पेशल दोस्त अंकिता और विमल के लिए। कौन किससे चाहकर दूर होता है, कौन किससे चाहकर दूर होता है, हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं कि हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोहिनूर होता है। सोच तो आपकी होगी मगर आवाज देंगे हम, सोच तो आपकी होगी मगर आवाज देंगे हम। ख्वाब तो आपने देखा मगर अंगाज देंगे हम, ख्वाब तो आपका होगा मगर अंगाज देंगे हम। विदाई पर हमारी ओर से, विदाई पर हमारी ओर से उपहार इतना है, इरादे आपके होंगे पर परवाज देंगे हम। इरादे आपके होंगे मगर परवाज देंगे हम। All the respected teachers, my juniors and my dear friends. It's a pleasure for me to speak here at this farewell party on the behalf of my classes. So today we complete our 10th. Finally the day has came where all we students of class 10 needs to leave our childhood behind and step into the world to create our own path in life. Each of us has a dream. And I thank my school for making us capable enough to achieve our goals and dreams. On the farewell event, I take an opportunity to express my gratitude toward for all the lessons they have taught us. Your kindness and caring nature is the reason that we all today are ready to face challenges with smile and courage. जब पूरी दुनिया को पता नहीं था कल क्या होगा, हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हमारे टीचर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये जो हमने इनसे सीखा, ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं सिखा सकती। जब बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बाउंस बैक करने का एक टेस्ट चैप्टर है, आज हम सब प्राउडली आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे साथ हमारे टीचर्स, फ्रेंड्स एंड हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ डट कर खड़े रहते हैं। We all assure you that we will strive hard to be a successful and a responsible citizen of the nation. I am also thankful to my parents who joined me in such a काश मैं वक्त को कह पाती, काश मैं वक्त को कह पाती, अभी तू ठहर जा, मुझे कुछ अल्फाज बाकी है। जो तेरे साथ हुआ वो मेरे एहसास। So first of all, a special thanks to Diksha, the leader, and her colleagues, those who have means today decorated this one room for a grand farewell of our senior students. And there are some other students also who will be departed after the 8th class, and the students right now in front of me with whom I have spent so many years, and I have affection and a love towards you that motivates me to do something good for you and to think about you each and every time. All my dear students. So I can say I love you all to the moon and back. Love you all. It happens because you are the flowers of my garden. You all are the flowers. We have nurtured you for the past 8 years. For the past 8 years, 7 years, 6 years,
we have nurtured you. Till you were here in 8th class, up to 8th class, my other colleagues, staff members have nurtured you with their knowledge, with their skills. And after that, when you were part of my class, I also tried to nurture you well. And today it's been a special occasion for me because someone, if just taking a depart from me, with whom I have spent so many years. When we were there in the class, inside the class, I can imagine those days. I have played with you also. Everywhere, wherever you are going, we were playing also. And we were just sharing our feelings also. And sometimes you are also trying that I should also share my feelings of my childhood or when I was a student. So I have shared my feelings to you also. And it's all secret. You know it very well. So these are the part of life. Ups and downs, these all are the parts of life. But the main thing that should go, that is, the show must go on. We have not to stop it. Yes, this you have to keep in mind, that you will never ever stop for a moment. Because it's the journey, it's the part of the journey. Right now you are here, I want to see you there. And you have not to stop. Okay? Everything coming into your life, these are the part of life. Let bygone be bygone. But the main thing is that the life, even when we were also the small children, small students, we cannot say we were also the, means, Sarva Guna Sampat, we cannot also. Okay? These are all the parts of life. It happens in everyone's life, in someone's life, it happens. But we have to move on. हमें चीजों को पीछे छोड़ते हुए उससे आगे बढ़ना चाहिए. तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना भविष्य में भी हमेशा ही कभी भी हो, कभी भी आपके पास अगर ऐसे मोमेंट्स आपके साथ में आते हैं जहां से आप एक ठहराव सा महसूस करते हैं कि आप यहां रुक जाए, नहीं, द लाइफ मस्ट गो ऑन, आगे बढ़ते रहना है, स्टॉप यू, ध्यान रखना चाहिए, कभी भी स्टॉप नहीं होना. एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए कि अब क्या होगा मेरा, अब मैं क्या करूंगा, अब ये नहीं. आप जहां हैं वहीं से अपनी लाइफ को आप आगे बढ़ा सकते हैं. आपके पास 100% अपॉर्चुनिटी है, 100% आपके पास चांसेस है. एंड वी हैव द एग्जांपल्स आल्सो. उसके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के काफी अप्स एंड डाउन्स के बाद भी लाइफ में ऐसे मुकाम हासिल किए. You have the examples. So you have also to set the examples. आप सभी ने एग्जांपल्स सेट करने हैं इन लाइफ. मैंने आपको पहले भी कहा कि कभी भी इन फ्यूचर आपको एक चीज का ध्यान हमेशा इन चीजों का रखना पड़ेगा कि कभी भी आप जहां भी आगे क्लासेस में जाएं, जो भी करें, तो ऐसा आपको वहां पर बन के रहना है, इतना अच्छा आपको बन के रहना है जैसे आप मेरी नजरों में हैं, ऐसे आपको सबकी नजरों बन के रहना है. कि जैसे ही बने, या हम भी इनके जैसे चले, हम भी इनके जैसे बोले, हम भी इनके जैसे खेले, है ना. तो चाहते हैं जूनियर बच्चे, है ना. तो हमें भी देखिए इतना प्राउड फील होता है, इतना अच्छा आप सामने से आके बोल रहे हैं. और क्या ही कहें, बहुत सुंदर लगता है आप लोगों को देखकर. मतलब ये फूल जो है मुरझाने नहीं चाहिए, हमेशा ऐसे
आप हमारी बगिया के फूल हैं, आपको हमेशा ऐसे खिलते रहना है ना, जीवन में हमेशा बढ़िया बढ़िया। कोई लोटस का फ्लावर है, कोई लिली का फ्लावर है, कोई सनफ्लावर है, हाय हाय हाय, है ना। तो ऐसे बिल्कुल मुस्कुराते रहना है और जीवन में ऐसे खिलते रहना, बढ़िया करके खिलते रहना है ना। हाँ, ऐसा कोई माली नहीं होना चाहिए जो आपको आना है और चौंकाना है आपके रिजल्ट से। आप चौंकाएंगे, पक्का चौंकाएंगे आप। ऐसा रिजल्ट आपको अपना लाना है वहां पे कि आप अपने रिजल्ट से सबको चौंकाएं। आपके पास हर समय कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप जा सकते हैं, तो वहां पर से उस सिचुएशन से निकलने का आपके पास प्लान होता है। आपके पास थोड़ा डीप जाओ अपने अंदर, आपके पास हर चीज सिचुएशन से, हर चीज। एग्जाम का 1 घंटा भी बचा है ना, एग्जाम का 1 दिन भी बचा है ना, उस एक दिन का भी प्लान आपके अंदर छिपा हुआ है। वर्क करो उसके अकॉर्डिंग चलो और फुल कॉन्फिडेंट होके आप अपने एग्जाम हॉल में फुल कॉन्फिडेंट, ठीक है, हौस पौच होकर के नहीं, कंफ्यूज होकर नहीं, फुल्ली कॉन्फिडेंट होके एग्जाम हॉल में आपको एंटर करना है और बस गाड़ने हैं झंडे आपको, ठीक है। और आप गाड़ेंगे, आई बिलीव यू, ठीक है। और ये चेहरों की मुस्कान बनी रहनी चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, इसी तरह से, ठीक है। कभी भी लाइफ में ऐसा मोमेंट आपके अंदर ऐसा नहीं आना चाहिए कि आप बिल्कुल हताश निराश हो और क्या करूं कैसा करूं। तो एक बात उस समय ध्यान रखना, द शो मस्ट गो। बस ना वो चेहरा रोनाई कहीं, ना वो अखियां नुरानी कहीं, ना वो चेहरा नुरानी कहीं, ना वो दिल वाली बात भी ना वो सदरी जवानी कहीं। जैसे तू है वैसी रहना, झकी घूमना थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई नहीं आपके जैसा। आई लव यू लॉर्ड। गुड आफ्टरनून ओके, धन्यवाद टीचर। आज यहाँ पे हम सभी लोग जो हमारे सीनियर बच्चे थे हैं यहाँ पे, और इनका आज फेयरवेल पार्टी आज और एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक किसान होता है ना, एक साधारण शब्दों में आप यहाँ पे मैं अपनी बात रख रहा हूँ। एक जैसे किसान होता है, वो अपनी खेती करता है तो उसमें वो सबसे पहले बीज बोता है, खेत को जोतता है, बीज बोता है, उसके बाद उसकी गुड़ाई करता है, धीरे धीरे अपनी फसल को एक तैयार। आप लोगों से बहुत ज्यादा है और उनका कर्तव्य था आपको पढ़ाना, एक अच्छे स्कूल में भेजना, तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है यहाँ पे। और उनके कर्तव्य को, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उनकी अपेक्षाओं को साकार करने के लिए आपने साल भर जितनी मेहनत कर रखी है, तो वो दर्शाना भी है ना। और ये नहीं कि एक ही पढ़ाई के क्षेत्र में, और जब यहाँ पर भी आपको जब भी मौका मिलता है अपने माँ बाप का और स्कूल का या फिर टीचरों का जो आपके साथ आके लगे हैं, अलग सर, बस इतना गर्व से चौड़ा करना है, क्योंकि आपका मेहनत ही ये सब कुछ कर पाएगी, है ना। तो ये नहीं कि हमने आज आप सभी शाउट नहीं करना। आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाली परीक्षा के लिए आप बेहतर करें और आपका परिणाम भी अच्छा रहे।
सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिस मुकाम पे जाएं, जिस ऊंचाई पे जाएं, उसे अच्छी तरह से प्राप्त करने की कोशिश करें। या जिस सीढ़ी से आप चढ़ोगे, कभी भी अपने जीवन में, अपने लाइफ में वो सीढ़ी को अपने आप ही कमजोर नहीं बनाना है। आपको हमेशा उसे उस जगह पे, उस स्थान पे मजबूत की तरह खड़ा होना है और हर स्थिति से अपने आप को उभारना है। और हर स्थिति में ऐसे मतलब ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि आपको कि हाँ हम इसे कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए, हाँ हम इस चीज से लड़ सकते हैं। और हमेशा हर परेशानी का, हर कठिनाई का सामना करने की आपकी सबसे पहले है कि लगभग हो गया कर ही दिया हमारे संदेश। तो ये विद्यार्थी जीवन है। विद्यार्थी जीवन एक संघर्षमय जीवन। क्या आप अपने भविष्य के लिए, भविष्य को सुधार करने के लिए अच्छी सोच, अच्छे काम, ये जीवन में सदा रहना चाहिए। और आप अच्छे अगर अच्छी मुकाम पर चले जाएंगे तो हमें चलो मुलाकात यही भी हुआ तो हमें पता चलेगा कि वो बच्चा हमारा इस लायक बन गया, वहाँ उस कंपटीशन में लग गया, तो अंदर से खुशी हमें भी थोड़ी दुखी हो रहा है। बस इस बात की हो रही कि आप बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और यहाँ से इतने मतलब एलएम सर ने और टीचर्स ने इतनी मतलब उनको योग्यता बनाया कि हमें कोई मतलब कभी भी आगे बढ़े तो हमें पता है वो श्योर कुछ न कुछ करेंगे। तो मैंने उसमें सुना था कि भागवत कथा में उन्होंने बोला कि माता पिता जो होते हैं वो भी बहुत स्वार्थी होते हैं। अगर उनका बेटा होता है तो वो सोचते हैं कि कुछ बेटियां होती तो वो सोचते हैं कि यार लड़की है शादी होगी चली जाएगी, बेटा होता तो बहुत खुश होते हैं कि यार कुछ पढ़ लिख के कुछ बनेगा। पर एक शिक्षक है जो निस्वार्थ होता है। अगर आप दूसरे स्कूल में भी जाते हो, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो लो उधार, किसी के दिल में हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हम पे हो एतबार, जीना इसी का नाम है। प्यार का जिंदा हंसी है हम पे प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी की आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना के लिए जैसे कि हम मैं 4 साल मेरे को भी यहाँ पे होने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को शायद किस क्लास में ऐसा 6 क्लास में से मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए आ रही हूँ। हमेशा जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ ये इस साइड से गलत जा रहे हैं, तो उस समय मैंने आपको शायद मैं आपसे प्यार से नहीं बोली होंगी, क्योंकि मैं उस समय आपको डांटती हूँ इसलिए क्योंकि एक परिवार होता है, ये भी हमारा एक परिवार है।
अगर सारे लोग इसमें प्यारे होने वाले हो जाते हैं, इसीलिए जो हमारा मिशन स्कूल फैमिली है, आप लोगों के पेरेंट्स है, तो इसमें उस परिवार है तो ये डांटने वाला होता है, तो वही होता है एक सिक्के के दो पहलू, क्योंकि होना जरूरी है। क्योंकि उससे क्या होता है, शायद कोई चीज आप प्यार से मानते हो तो आप प्यार, जो आपको प्यार करता है उसके पास जा सकते हो। हाँ, आपको लगता है कभी कि यार नहीं ये चीज मुझे शायद मैं इस चीज नहीं हो पा रहा हूँ, हमें लगे कि हाँ चलो हम इस चीज को अपना लें कि बच्चा हमारा सही बन जाए। आप लोगों पर हमें यही उम्मीद है कि आप हमेशा शायद अच्छा करोगे, हमसे ज्यादा आपके पेरेंट्स। तो ज्यादा करते हुए मैं ये कहूँगी कि जिस तरह आप लोगों ने आज तक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, तो आगे भी आपको ऐसे बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। और इस विद्यालय का नाम और इस विद्यालय में पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक को ये गर्व महसूस होती है। गार्डन की ऐसी फ्लावर है, ऐसी स्टूडेंट है कि जिन्होंने विगत कई वर्षों से अक्षता के साथ अच्छे से इनको पढ़ाने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो बहुत अच्छी ये बालिका है, बहुत अच्छी ये विद्यार्थी है और इतने सेंसिटिव है, इतनी इमोशनल है। और मैं कहूँगा कि इसके अंदर का जो नेचर है, इतना केयरिंग इसके अंदर का नेचर है और हर चीज को बड़ा तोल मोल बहुत करती है लड़की। मतलब कुछ भी ना मुंह से कोई भी चीज इसके बाहर तब आएगी, अंदर पहले उसको अच्छे से तोल लेती है। और इतनी सारी मतलब कभी भी कोई भी मतलब ऐसी लगा नहीं कि लड़की कहीं पर निराश हताश दिखती है, नहीं, अपने काफी सारे अपने फीलिंग्स को दबा के भी रख लेती है, छिपा के भी रख लेती है। और कितनी अच्छी है बालिका, विगत कई वर्षों से इसको हमने पढ़ाया है इस गार्डन में और खूब नाम भी रोशन करे बालिका। और हमें पूर्ण विश्वास है बहुत आगे बालिका जाएगी और अपने स्कूल का, अपने घर परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। एक छोटा सा उपहार हमारी तरफ से अक्षिता के लिए, अक्षिता सबसे भेड़ आपके लिए, खूब आप पले फूले खूब नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उज्जवल भविष्य के और हमारी एक्सपेक्टेशंस में आप खरा उतरे और बहुत आप उन्नति करेंगे। वेरी गुड, बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। मैं उस होनहार हमारी जो बालिका है उनको मैं बुलाना चाहूंगा, जो कि हमारे विद्यालय की बहुत सारे विद्यार्थियों की मैं कहूँगा कि रोल मॉडल, वो अपने आप में रोल मॉडल है और जिसको देखकर काफी गर्व फील होता है। जिनको कुछ भी वो लड़की करती है तो बड़ा गर्व फील होता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। वो लड़की अगर बोलती है तब भी प्राउड फील होता है, गाती है तब भी प्राउड फील होता है। और उसके अंदर की जो कला है, जो उसके अंदर की जो सीखने की जो विशेषकर जिज्ञासा है, तो उसको मैं सादर नमन करना चाहूंगा और बुलाना चाहूंगा वैशाली रावत को। वैशाली जी, तो ये बालिका वैशाली आप सबके सम्मुख विगत कई वर्षों से विद्यालय में पढ़ रही है और आप में से बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे विद्यार्थियों की एक अपने आप में एक रोल मॉडल है। और इस तरह से इसका सभी विद्यार्थियों के प्रति मतलब पार्शियलिटी नहीं दिखती मुझे इसके अंदर, बहुत ज्यादा स्नेह इसका सभी विद्यार्थियों के प्रति रहता है। और जिस प्रकार से इसकी जो सीखने की जो अंदर की ललक है, जो इसके अंदर की जो जिज्ञासा है, हर चीज को बारीकी से जानना चाहती है, हर चीज को सीखना चाहती है। कभी भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि जैसे अगर मैथ्स में भी बालिका पढ़ती है तो मैथ्स में भी कोई भी अगर कोई भी चीज अगर नहीं आ रही है ना, तो इसके अंदर जब तक इसको पढ़ाता जब तक इसके फेस में हंसी नहीं देख लेता था, तब तक मुझे लगता हाँ यार इसने अभी तक ये नहीं समझी है, तो फिर से पढ़ाओ, फिर से इसको दोबारा रिवाइज कराओ। तो जब तक इसके फेस में हंसी नहीं आती थी तब तक ये लड़की संतुष्ट नहीं होती थी। और इतने अंदर तक इसकी जो मतलब मैं कहूंगा कि जो कैचिंग पावर है, चीज को एक बार समझा दिया, बता दिया तो इतने अच्छे से पकड़ लेती है। जब वो क्वेश्चन बताया, आज भी उस क्वेश्चन को अगर दूंगा तो ये कहेगी सर तो आपने तब इसको इस तरीके से बताया था। कोई भी चीज याद करना है, लर्निंग पावर देखो इसकी लड़की की, तो हर चीज में एक मतलब एक अभूतपूर्व और
ऑलराउंडर तरीके की ये बालिका है और बहुत ही लड़की उन्नति करेगी, हम पे इसे पूरा विश्वास है और अपने घर परिवार माता पिता का नाम, सबका नाम, विद्यालय का नाम ये रोशन करेगी लड़की, हम सभी का नाम, तो ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा कार्ड और एक प्रदान करें सीमा पसंद करना से बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्ची को, खूब उन्नति करें और हमारी आकांक्षाओं पर, अपेक्षाओं पर पूर्ण रूप से ये लड़की खड़े उतरे। बहुत बहुत शुभकामनाएं तेरे को, बहुत 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 खूब उन्नति करेंगे। हाँ, इतना सौम्य लड़का, सुशील लड़का से एलियन के नाम से जाना जाता है। सौम्य है और बहुत इसके अंदर की जो मतलब वो है, क्या बोलते हैं, और वो रेस्पेक्ट है ना, जो अपने गुरुजनों का, ये अपने से बड़ों का, जो इसके अंदर जो मैंने रेस्पेक्ट देखी, बहुत बहुत रेस्पेक्ट करता है, सभी की बहुत रेस्पेक्ट करता है ना। तो इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बच्चा बहुत पढ़े, बहुत फले फूले और काफी इस बच्चे के अंदर इतनी इमोशंस हैं, लेकिन इस बंदे के अंदर का जो टैलेंट है वो अभी निकल कर आकर बाहर आना भी बाकी है। इस बच्चे के अंदर का जो टैलेंट है ना वो अभी हिडन है, अभी उसका बाहर निकलना भी अभी शुरू हो रहा है। और जिस दिन इस बच्चे के अंदर का टैलेंट पूर्ण रूप से बाहर निकल गया ना, ये बच्चा बहुत अच्छा कर जाएगा, बहुत अच्छा कर जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी कलाएं छिपी हुई है, अभी करे काम चाहेंगे कि बच्चा बहुत आगे चलकर नाम रोशन करे और हमारी अपेक्षाओं पर पूर्ण रूप से खरा उतरे। तो मैं बुलाना अभी मतलब चेहरे पे ऐसी शिकार हमने दी हुई है ना, तो बहुत शानदार सभ्य लड़का मैं कहूँगा विमल। तो विमल को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के भविष्य के लिए और हमारी आकांक्षाओं पर, अपेक्षाओं को पूर्ण रूप से आप खरे उतरे। बहुत बहुत शुभकामनाएं विमल आपको। और एक छोटा सा बहुत नाम रोशन करो, अपने घर परिवार माता पिता सभी का नाम रोशन करो, ठीक है। डेली इवन हर क्लास में इनका नाम जरूर आता था, अभी अगर हम पर वो होता तो ऐसा करता है ना। तो हमारी जो बालिकाएं हैं काफी अच्छी आपकी एक्टिंग भी करती है, एकदम हुबहू है ना। हमारे बॉयज की एक्टिंग तो मतलब ये बालिकाएं ऐसी कर देती है, क्या बताएं आप, सबकी एक्टिंग है ना। विशेषकर मैं कहूँगा कि विमल और अंकित की एक्टिंग बहुत अच्छे से लोग करते हैं, विशेषकर सुमित की भी एक्टिंग अच्छी करती है, सुमित की भी अच्छी करती है। वो उसका जो बोलने का जो तरीका होता है या फिर तो बहुत सुंदर अंकित पांडे, इनका भविष्य उज्जवल निश्चित रूप से होगा, ये हमारी ओर से पूर्ण इनको शुभकामनाएं हैं और अपेक्षाओं पर आप निश्चित रूप से एक दिन खड़े उतरेंगे और आपके अंदर की जो आग है, जो कॉम्पिटिटिव माइंड आपके अंदर का है, वो एक दिन आपको एक दिन बहुत ऊंचाई तक आपको ले जाएगा। आपको बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामनाएं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विद्यालय के हमारे अंकित आपको हमारी पूरे विद्यालय परिवार की ओर से और पूर्ण अपेक्षाओं पर आप हमारे खड़े उतरेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी बच्चे अब बेबाक बच्चा है, मतलब अपनी बातों को बिल्कुल बिना किसी उसके झिझक के रख देता है, बेबाक ये बच्चा है। और पिछले कुछ दिनों इसका 121 है, वो तो सब ठीक है, क्लास में घुस रहे। और इसका जो मजाक करने का जो तरीका होता है वो अपने आप में निराला तरीका इसका है। बहुत आगे वो क्षमता इसकी बढ़ाएगी। तो इसी रूप से, इसी तरह से आप अपने आपको आगे बढ़ाते रहे, आपको आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सुमित आपको। खूब उन्नति करें, खूब मेहनत करें, खूब तरक्की करें और नाम रोशन करें, भविष्य में आपका नाम खूब उज्जवल हो, है ना। और घर परिवार